Bismillahirrahmanirrahim. This is your facilitator Nokhais Chaudhary from the Department of Economics and Business Administration. Welcome to the University of Education, and we will discuss today the philosophy and the future of Islamic finance. So let's talk about the objective of the discussion. In today's lecture, this lecture will give you a great detail about the philosophy of the Islamic finance. Dear students, what is actually the philosophy? I must say that philosophy is a set of some permissions, some beliefs, some faiths, some prohibitions, some guidelines, some realities जिसे आप कंसिडर करते हैं और एक पूरा फ़लसफ़ा बनाते हैं. जैसे हम कह देते हैं कि द फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है, द फ़िलासफ़ी ऑफ मेडिकेशन है, द फ़िलासफ़ी ऑफ फूड है, द फ़िलासफ़ी ऑफ लिविंग स्टाइल है. सो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस. आई मीन टू से if we took about the Islamic perspective of finance, what would be the beliefs, what would be the guiding principles, what would be the prohibitions we must avoid, and what would be the permissibles, and what are the encouragements and what are the discouragements. I mean, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसकी बुनियाद जिन उसूलों पर, जिस फेथ पर मबनी है, दैट इज़ द फिलोसफी ऑफ द Islamic finance. So we simply say that here in this line that philosophy of Islamic finance is actually based on permissibles, prohibitions, some encouragements, and some discouragements that actually fully guided us in all the dimensions of the economic and trading activities. In this video, I will not discuss the debt and the concept of equity in the Islamic finance. Similarly, I will not discuss the concept of time value of money and the concept of money. But as far as these concepts are again concerned with the philosophy of Islamic finance, we will make a separate video on these topics as a second part of this video. So please keep your focus on the permissions, the prohibitions, and the encouragements and discouragements while taking the contents of this lecture. So I must say that Islamic finance is broadly based on some prohibitions and encouragements. The prohibition of riba and permission to trade, as far as the previous lectures are concerned, we have referred from the Quran. We actually take reference from the Quran that Allah Ta'ala ने इंसान को रिबा से मना फरमा दिया है और तजारत की अल्लाह ने इजाज़त दी है. इससे हम ये भी बात ले सकते हैं कि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि आप तिजारत करें हलाल कमाई के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए. और प्रोहिबिशन जिसकी पीछे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक डिटेल डिस्कशन भी की है कि क्यों इसकी ममानियत है, उसके पीछे कौन कौन सी इम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से सारी सोसाइटी जो है वो सफ़र कर सकती है. बहरहाल हम लोग आज प्रोहिबिशन की कॉजेज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम ये साथ साथ बताते रहेंगे बट इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस. सो लेट्स read the statement again. The prohibition of riba and permission to trade drive the financial activities in an Islamic economy towards asset-backed businesses and transactions. So एक ऐसा मुआशरा जो कि इस्लामी कवानीन पर चल रहा है, उसकी जितनी भी मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसमें प्रोहिबिशन की कोई जगह नहीं है और तिजारत
की बिल्कुल इजाज़त है, और तमाम हलाल चीज़ों की इजाज़त है तजारत करने की। आप उनकी तजारत कर सकते हैं, और साथ साथ ये शर्त है कि जो तजारत आप कर रहे हैं, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, जो भी आपकी फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, दे मस्ट बी बैग्ड विद सम एसेट्स। खैर, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोग करंट टाइम में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिन चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं कि मैं आपको 10 दिन बाद इतनी मालियत का सामान दूंगा, या मैं 15 दिन बाद आपसे ख़रीद लूँगा, तो बेचने वाले के ना तो पास एसेट होता है, और ख़रीदने वाले के पास ना असल में कुव्वत ख़रीद होती है। सो ऑन वन साइड द सेलर डज़ नॉट होल्ड द पोजीशन ऑफ द एसेट, एंड ऑन अदर साइड द बायर डू नॉट हैव द टोटल कैपेसिटी टू बाय दैट एसेट। आई मीन, ना तो वो कंज्यूमर है और ना ही उसकी इंटेंशंस हैं एसेट का पोजेसन लेने की बाय पेइंग द फुल पेमेंट्स ऑफ द एसेट। सो दिस इज़ नॉट परमिसिबल इन द इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो ऐसी चीज़ की तिजारत आप कैसे कर सकते हैं जिसकी ऑनरशिप आपके पास ही नहीं है? So all financial transactions must be representative of a real transaction or the sale of goods, services and benefits. And my dear student, this is the real cause कि इस्लामिक फाइनेंस इकोनॉमीज़ को की लॉन्ग लाइफ को ज़्यादा अश्योर करता है, बिकॉज़ ये एम्फसाइज़ करता है कि जो भी सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, दैट मस्ट बी नेचुरल and that must be true. It must not be manipulated or disrupted by the participants of the market. I mean, if there are 100,000 tons की जो है वो डिमांड है गंदम की, और मार्केट में लेने वालों की एक बहुतात इस तरह से नज़र आ रही है कि जनाब 20,000 टन गंदम का ख़रीदार मौजूद है, लेकिन जब पूरी पॉपुलेशन की टोटल कंजम्पशन ईयरली 10,000 टन गंदम की है, तो क्या मुझे ये बताएं, इस आर्टिफिशियल रेज ऑफ डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ नहीं जाएंगी? ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। तो इस्लामिक फाइनेंस जो है वो ज़ोर देती है कि सप्लाई एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है, दैट मस्ट बी नेचुरल। आई मीन, इट मस्ट नॉट बी डिराइव्ड बाय द आर्टिफिशियल फोर्सेस, and it must not be disruptive, and it must not be artificialized by the participant of the market. Similarly, all transactions involving interest payments are strictly prohibited as the building block of the philosophy of Islamic finance, and the debt contracts cannot be sold at a premium or discount. As the conventional finance is concerned, you might have in your knowledge that you sell your financial contracts, you purchase your financial contracts, you sell your liabilities on discounts. This is not permissible in the Islamic philosophy of finance. Similarly, there are some other guidelines that Islamic finance does not consider loan as investment. देखें, कन्वेंशनल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो अगर आप बॉन्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, यू आर टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टर, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स आप लेंडिंग कर रहे हैं और आप एक क्रेडिटर हैं फॉर द कंपनी, और कंपनी इस मनी टेकिंग के बदले में आपको फ़िक्स रिटर्न देने की पाबंद है। सिमिलरली, अगर मैं बात करूं कि आपने अपने पैसे हैं जो पेपर करेंसी है, जो आपके पास आपकी जो वेल्थ है, यू डिपॉजिटेड ऑन फिक्स टर्म इन अ बैंक, यू बिकम एन इन्वेस्टर। आई मीन, यू आर द लेंडर, सो you are looking for some return or over the years. In this sense, you become an investor. But in Islamic finance, the lenders and the loaning activities cannot be considered as your investments or considered you as an investor. This is a very basic point. और उसकी क्या रीज़न्स हैं, हम लोग जब इक्विटी वर्सेस डेट कॉन्सेप्ट देखेंगे
तो वहाँ पर इस एक स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि इस्लाम क्यों लोनिंग को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं लेता, ठीक है। बट सो फॉर मैं सिर्फ इतना समझा दूँ कि इस्लाम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो इन्वेस्टर्स उनको कंसिडर करता है जो कि फ़ंड प्रोवाइडर तो हैं, लेकिन वो साथ साथ रिस्क भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। आई मीन द एंटरप्रेन्योर हु आर द फंड प्रोवाइडर। और अगर वो फिक्स रिटर्न ले रहे हैं, दे आर नॉट द इन्वेस्टर्स एक्चुअली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जब हम लोग ये पेपर करेंसी की थोड़ी सी आगे जाके बात करेंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि किस तरह से पेपर करेंसी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं रखती। हकीकत में वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे हम लोग अभी इन लेटर स्लाइड भी ये बात करेंगे कि पेपर करेंसी इज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट डज़ नॉट हैव इन अ रियल वैल्यू इन इटसेल्फ। तो ये शायद पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों से बात की थी। अगर आप इसके ऊपर मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। So investment will be considered only if it becomes a part of real activity or is itself a real activity. अब इस बात से क्या मुराद है? इस बात से भाई ये मुराद है कि अगर आप पेपर करेंसी या अब किसी भी किस्म की कोई करेंसी पे करके कोई चीज़ की ख़रीदारी कर रहे हैं, आप कुछ रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, आप प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ख़रीद रहे हैं, आप ट्रेडिंग के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं, दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज द रियल एक्टिविटी एंड टू बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। Similarly, the selling or purchasing of financial instruments will not be considered as investment. As I told you here, you cannot put your money into the bonds, conventional जो form of investment consider किया जाता है। They are merely financial transactions as no real activity is involved. So ये ऐसी financial transactions हैं जिनसे ना तो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कुछ जनरेट हो रहा है, और पैसा लगाने वाला किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क जो है वो ना बेयर कर रहा है, ना एक्सपोज्ड है, और ना ही वो रिस्क शेयर कर रहा है। तो जस्ट गिव यू द एग्ज़ाम्पल कि यार मैंने 100 रुपया बैंक को दिया, बैंक ने उसमें से 90 रुपये आगे लैंड कर दिए, और वो पैसा मार्केट में गया और मार्केट में घूमता घूमता 70 रुपये फिर बैंक के पास वापस आ गए, और बैंक ने उसमें से फिर 60 रुपये लैंड कर दिए, और वो घूमते घूमते 40 रुपये फिर बैंक के पास आए, बैंक ने उसमें से फिर 30 रुपये लैंड कर दिए। तो अगर मैं ये बात करूँ तो ये मार्केट में उस एक 100 रुपये के जो बदले क्लेमर्स हैं वो शायद 250-300 रुपये के स्टैंड कर गए हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं, लेकिन एक्चुअली तो एक्टिविटी उस 100 रुपये से ही हो रही है जो कि स्टार्ट में था, और वो मैंने मार्केट में लैंड किया था। सो इस वजह से मार्केट में वो जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस्लामिक फाइनेंस इसको इनकरेज नहीं करता। I can say that investment will be considered only if it becomes a part of the real activity, right? Purchasing of bond that may be issued by the government or may be issued by some corporate, or making some kind of deposit into the conventional bank in the form of loan will not be considered as your investments, and you are not will be considered as an investor because they are merely financial transactions. But if the funds are used to purchase some real goods or some real services and then sell them at a profit with some margin, this use of fund will be treated as investment, right? So by using the funds borrowed or invested, by using the funds borrowed on interest or for buying or building a physical asset is not permissible as a business activity, because this is again in the
is not the permissible bracket, because it includes the prohibition, and that is riba. Similarly, buying and selling a financial document cannot be considered as investment, right? So let's move to the next slide. In loan transaction, the exchange must be of equal amounts. This is the concept of कर्ज़ हसना in Islamic finance. और अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, आपका तज़किरा खैर करें, तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर्ज़ लिया करते थे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या हुकूमती मामलात के लिए, बट दैट वाज टू बी एक्सचेंज इन इक्वल अमाउंट्स, राइट? तो इस्लाम कर्ज़ देने से या कर्ज़ लेने से मना नहीं करता, लेकिन उसके साथ जब आप इजाफ़ी कंडीशन जोड़ देते हैं, इस्लाम इसकी नफ़ी करता है, इसको डिस्करेज करता है। राइट? So if the borrowed commodity is fungible, exactly it's like is to be repaid. Fungible प्रोडक्ट से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे करेंसी फॉर करेंसी है, गोल्ड फॉर गोल्ड है, सिल्वर फॉर सिल्वर है, डेट्स फॉर डेट्स हैं। तो अगर तो वो एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे का, तो दे मस्ट बी एक्सचेंज इन इक्वल अमाउंट्स, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज रिबा. One should sufficiently know that what one is giving and what one is getting in exchange in a contract. तो इस बात का बड़े बखूबी ख्याल रखना होगा कि आप जितने भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उसमें आप किन चीज़ों का तबादला कर रहे हैं, और अगर उनमें किसी भी किस्म का इजाफा है वो तजारत में फ़ॉल करता है या वो रिबा में फ़ॉल करता है. सर्टेनिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स एक्सचेंज वैल्यू, transparency, disclosure and free consent of the parties for entering into the contract must be ensured. And again, this is the second pillar of the Islamic finance. Islamic finance totally discourage the the thing कि आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात छुपा रहे हैं, परचेज़र या जो सेलर है वो किसी बात से आशना नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी जगह पर जाके मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस तरह की बातों से किसी का हक़ मारा जा सकता है, और इस्लाम इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता. सो वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट बी फुली एक्सप्लेन्ड, दे मस्ट बी फुली एक्सपोज्ड फॉर ईच पार्टी, एंड दे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन द ट्रू स्पिरिट एंड ट्रू मीनिंग्स. राइट?